I welcome Dr. Vipin Kishore again for his lecture on the same topic, that is English language pedagogy and communicative skills. As I said yesterday, he is a very renowned scholar and have a deep understanding in the pedagogy of English. Yesterday, due to some technical glitch, it was not possible to make the presentation. So now he is giving his lecture along with his presentation. So I welcome on the part of participants. I am very grateful to you, sir. So now it is over to you. Please start your lecture and presentation. Thank you so much, Mishra sir. So I think I am audible now. No, yes, sir. Yes, you are audible, and Ah, presentation is also visible. okay, sir. Thank you, sir. So thank you, Mishra sir. Thank you, Bish sir. And thanks to Diet Badkot. And thanks to all the teachers for allowing me to get an opportunity to interact with all the, very eminent scholars and very efficient teachers of uh, district Uttarkashi. So yesterday we talked about English language pedagogy and communicative skills. A few things we discussed yesterday. So today, uh, let me start with this slide. Probably most of the teachers would have been conducting this prayer in their respective schools. So shall we start this with this Sir, prayer? Vimal sir, Yes, sir. I have a request on the part of participants Ji. that give some input in Hindi as well because they are not as comfortable with the English. Okay, sir. Okay, bilingual. So, In bilingual yes, approach yes, today yes, yes, sir, we sir. will. Yeah. Please continue in bilingual. Okay. So yesterday कल हम लोगों की जो बातचीत हुई थी तो उसी से आगे बढ़ते हुए सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस प्रेयर. ये एक प्रार्थना है एंड मैनी स्कूल्स दे हैव बीन कंडक्टिंग दिस प्रेयर प्रेज हिम. तो प्रेज हिम की थोड़ी सी इंटोनेशन को हम लोग पहले सीख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. तो प्रेज हिम को एक तो यही तरीका है. Praise him, praise him, praise him, praise him. Praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down, praise him when the sun goes down. हम लोग इसी ढंग से इसको तैयार करेंगे. एक तरीका और भी हो सकता है स्कूलों में कराने के लिए. Praise him, praise him, praise him. Praise him in the morning. Praise him, praise him, praise him. Praise him in the noontime. Praise him, praise him, praise him. Praise him when the sun goes down. So these are the two different tune or intonations for this prayer. हम लोग पहले वाले को पहले सीख लेते हैं. मिश्रा सर ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है, इसको करते हैं. आप लोग भी अपनी अपनी जगह पे गाएंगे. मैं भी यहां से गाऊंगा. प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम. ये लाइन हमने दो बार गानी है. प्रेज हिम वाली. प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम. Praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him, praise him when the sun goes down, praise him when the sun goes down. एक बार आप गाइए सब लोग. वेल डन, वेल डन. फिर से एक बार. प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम इन द मॉर्निंग, प्रेज हिम इन द नून टाइम, प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम व्हेन द सन गोज डाउन, प्रेज हिम व्हेन द सन गोज डाउन. एक बार फिर से कीजिए. प्रेज हिम.
Then we will take serve him. Serve him, serve him, serve him, serve him. Serve him in the morning, serve him in the noontime. Serve him, serve him, serve him when the sun goes down. Serve him when the sun goes down. कीजिए serve him. ट्रस्ट हिम कीजिए. Love him, love him. Next, thank him. उसके बाद में लास्ट में थैंक हिम, थैंक हिम. सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. राउंड ऑफ अप्लॉज. बहुत बढ़िया ढंग से आप लोगों ने इसको किया है. सो वीडियो शायद आ नहीं रहा था, तो मैं मोबाइल के थ्रू भी कनेक्ट कर रखा हूं, और एक राइम भी हम लोग गाएंगे. क्या मैं विजिबल हूं? ओके. इधर का साउंड मैं थोड़ा कर रहा हूं. सो दिस इज द राइम. आवाज इको हो रही है? ओके, जस्ट अ मोमेंट. अब ठीक है? Am I audible now? Yes, yes. Now it is okay. Okay. So rhyme is like this. Make a melody in my heart. Make a melody in my heart. 3 बार इस लाइन को बोलना है. Make a melody in my heart. Make a melody in my heart. Make a melody in my heart. Make the King of Kings for the make a melody in my heart. Make a melody in my heart. The King of Kings for the हम सब कीजिए.
Make a melody in my heart. Make a melody in my heart. The King of Kings. For the thumbs up. Thumbs up कीजिए. Thumbs down. Yes. Make a melody in my heart. Make a melody in my heart. The King of Kings. The King of Kings. Thumbs up. Thumbs down. Please bend. Make a melody in my heart. Make a melody in my heart. The King of Kings. Thumbs up. Thumbs down. Please bend. Legs apart. Make a melody in my heart. Make a melody in my heart. The King of Kings. Thumbs up. Thumbs down. Knees bend. Legs apart. Head down. Make a melody in my heart. Make a melody in my heart. The King of Kings. The King of Kings. Thumbs up. Thumbs down. Knees bend. Legs apart. Head down. Head up. Make a melody in make a make a melody in my heart. The King of Kings. For the King of Kings. Thumbs up. Thumbs down. Knees bend. Legs apart. Head down. Head up. Tongue out. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. La 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 la. So round of applause for all of you. Very good. So you enjoyed this rhyme? They are enjoying a lot, sir.
Because sir, you Sir, are muted, sir. yes, sir, PPT is visible or not? Yes, sir. PPT is visible. Okay, and I am also audible? Oh, yes, you are audible. Okay. So, now the most important thing is the purpose of entire teaching learning process is to give joyful learning experience to our children. जो पूरी शिक्षा का जो मकसद है वो यही है कि अपने बच्चों को हम किस तरीके से एक जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं. देर देर मे बी टू काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. बच्चे जो हमारे स्कूलों में आ रहे हैं, तो रॉबर्ट ग्रीन ने बड़ा अच्छा कहा था कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर द प्लेसेस वेयर स्टोन्स आर पॉलिश्ड एंड डायमंड्स आर डिम्ड. तो हमें बच्चों के बीच में विभेद तो नहीं करना है. वी डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट अवर स्टूडेंट्स, बट दिस इज ऑल्सो रियलिटी. आई एम ऑडिबल सर? सो दिस इज ऑल्सो रियलिटी कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो कई बार नहीं हो रही होती. उसके पीछे रीजन क्या है? द काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग इन अवर क्लासरूम्स इन अवर स्कूल्स is not very joyful. It sometimes or many a times it is very boring. So मतलब this kind of rhymes, this kind of prayer जो हम कहते हैं विद्यालय बने आनंदालय. So if we have this kind of prayers, rhymes जो कि हमारे टीचर्स ऑलरेडी करा रहे हैं अपने अपने स्कूल्स में, अगर ये सब हमारे स्कूल्स में हो रही हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा सीखने का आनंद प्राप्त होता है. And this is the purpose of, this is the destination of education, this is the goal of education, that the kind of experience they have been getting, it should be joyful, it should not be hectic, it should not be monotonous, it should not be boring. Am I right? I think all of us, you are agreed to this point, this viewpoint. So अगर इस तरह की चीजें हम अपने स्कूल में कराएं तो बच्चों को कहीं ना कहीं पर क्या होता है, सीखने का आनंद भी आ रहा होता है. yesterday we had another rhyme that was based on action words. Action words are verbs ना, तो verb पर based हमने वो की थी ओ मून वाली. तो उसमें क्या है कि जितने अधिक से अधिक आप एक्शन वर्ड जोड़ना चाहें, कल ऐसे हमने करा था ना, ओ मून कम कम कम, ईट विद मी, ड्रिंक विद मी एंड डांस विद मी, ये सब हमने किया था. तो जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, तो स्टूडेंट्स दे वांट दिस काइंड ऑफ joy, they want this kind of entertainment. And most important thing is, yesterday we discussed one very very important pedagogical issue. And what was that कि there are 4 skills of language, 4 skills हैं language के, but speaking should be given dominance, speaking should be given priority. स्पीकिंग को ज़्यादा वैल्यू इसलिए दिए जाने की जरूरत है कि व्हेन द चाइल्ड, नॉट ओनली द चाइल्ड, इवन द ग्रोन अप्स, द एडल्ट्स, व्हेन दे स्पीक सम लैंग्वेज, तो इट गिव्स देम एंटरटेनमेंट एंड इट गिव्स देम, इट इम्पार्ट्स देम कॉन्फिडेंस. जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो उसको बोलने की जो एक सुखद अनुभूति हमें हो रही होती है, जो एक आनंद हमें प्राप्त हो रहा होता है, और उसके साथ में जो आत्मविश्वास जुड़ा होता है. किस चीज का आत्मविश्वास? कुछ उपलब्धि करने का. क्योंकि yesterday we discussed this also कि 60 to 70% we use language for the sake of communication. अगर ये communication का process उस language में हम नहीं कर पाते हैं तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक interest है, तो it decreases the level of our interest. लेकिन जब हम क्या करते हैं, उस भाषा को सीख कर उसको अपने जीवन में उपयोग कर पा रहे होते हैं बोलने के रूप में, तो what happens? It accelerates our pace of learning. And what happens? It increases our interest towards that particular language. तो ये इसलिए जरूरी है कि लैंग्वेज को हम लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें और लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही हम पढ़ाएं. तो इसी तरीके से हम लोगों ने आज एक प्रेयर भी देखी, जो कि मेरे को मालूम है कि ऑल द टीचर्स दे आर वेरी एफिशिएंट. देयर इज ए फॉर्मूला ऑफ ट्रिपल सी. 3C का एक फॉर्मूला है. C फॉर कॉम्पिटेंस, दूसरा C फॉर कॉन्फिडेंस, और तीसरा C फॉर कमिटमेंट. कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट. तो हम किसी भी टीचर का जो एक कमिटमेंट है, यू नो, ऑल द टीचर्स दे आर कमिटेड टुवर्ड्स देयर क्लास. सो उनका जो कमिटमेंट है वो इसके कारण से है क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि उनके अंदर वो कॉम्पिटेंस, वो स्किल, वो नॉलेज उनके अंदर है. बट इफ देयर इज lack of competence, तो it results lack of confidence.
and ultimately results what? Lack of commitment towards one's profession. तो ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं, कॉम्पिटेंस से कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस से फिर हमारा कमिटमेंट कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरफ, हमारे स्कूल्स की तरफ, हमारे क्लास की तरफ बढ़ेगा। और मुझे मालूम है कि ऑल द कमिटेड टीचर्स दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्कशॉप, and all the faculty members of diet barcode, they are also very much committed towards their profession. So ये कुछ चीज हम लोगों ने बातचीत करी। तो इम्पोर्टेंट यही है कि लैंग्वेज को हम लैंग्वेज के रूप में ही देखें। तो व्हाट इज लैंग्वेज? आई थिंक दिस स्लाइड इज विजिबल। व्हाट इज लैंग्वेज? Yes, sir. हाँ। With तो अगर एक सिंपल क्वेश्चन हम करते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो कहते हैं भी भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड आइडियाज। यही एक बेसिक डेफिनेशन है लैंग्वेज की, कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। हालांकि समटाइम्स जो लैंग्वेज है इसके कुछ रिवर्स भी कर रही होती है। मेनी अ टाइम्स लैंग्वेज इज नॉट ए मीडियम टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड आइडिया, मेनी अ टाइम्स इट कंसील्स। इसके थ्रू हम अपने विचारों को छुपा भी लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है, साइक्लोन आने वाला होता है, तो उसको बढ़िया बढ़िया नाम दिया जाता है, कैटरीना, रीटा, कुछ अच्छा अच्छा नाम। अगर उसका नाम हम ड्रैकुला रख दें और कुछ खतरनाक नाम रख दें, तो उससे क्या होगा? उसकी इंटेंसिटी जो है वो पहली एक बहुत अधिक फोबिया जो है लोगों के अंदर इंजेक्ट कर देगा। तो कई बार हम भाषा के द्वारा चीजों की जो इंटेंसिटी है उसको भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं? थोड़ा सा छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ अ वेरी पॉपुलर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी जो हेनरी स्वीट ने दी है। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाई मीन्स ऑफ विच, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम तो है, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए होता क्या है? जो स्पीच साउंड्स हैं, जितने भी हमारे साउंड्स हैं, हिंदी भाषा में हमारे जितने ध्वनियां हैं, उसी तरीके से इंग्लिश भाषा में भी हमारी ध्वनियां हैं। इंग्लिश भाषा में हमारे कितनी ध्वनि है? 44 साउंड्स। लेकिन हमारे ये स्पीच साउंड्स हैं, और हमारे वैसे जो लेटर्स हैं 26 हैं। तो ये स्पीच साउंड्स हैं। तो स्पीच साउंड्स जो हैं, एक बात समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों ने कोई भी जैसे ऑक्सफोर्ड की या कोई भी डिक्शनरी देखी होगी, तो आप देखते होंगे कि पहले उसमें वर्ड लिखा रहता है, उसके बाद में उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी दिया रहता है। ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, तो ये 44 जो साउंड्स हैं, जैसे हम तो ए बी सी डी इन साउंड्स को जानते हैं, इन लेटर्स को जानते हैं, लेकिन जो 44 साउंड्स हैं, इनके लिए भी कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। इनको बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट जो इन साउंड्स के लिए दिए गए हैं। तो होता क्या है कि जो स्पीच साउंड्स हैं, कंबाइन होकर वर्ड्स बन जाते हैं, और वर्ड्स कंबाइन होकर सेंटेंसेस बन जाते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंसेस बनते हैं, मैंने कल भी कहा था कि ये लैंग्वेज नहीं है। जब ये सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं कि आई हैव आस्क्ड यू समथिंग एंड यू हैव बीन रेस्पॉन्डिंग एज पर द सिचुएशन, जो प्रश्न आपसे किया गया है उसी से संबंधित आप उत्तर दे रहे होते हैं, तो तभी उसको हम कहते हैं कि भाई अभी भाषा का मकसद पूरा हुआ। तो हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन के 3 पार्ट हैं: एनकोडर, डिकोडर एंड मैसेज। एनकोडर एनकोड्स द मैसेज, एनकोडर जो है वो अपने मैसेज को बनाता है, डिकोडर उसको डिकोड करता है, समझता है, और उसके थ्रू जो मैसेज है वो उससे क्या हो रहा है? कॉम्प्रिहेंशन हो रहा होता है। तो हमारा कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बोलने वाला है वो भी उस भाषा को समझे, और जो सुनना है वो भी उस भाषा को समझे। माना इफ आई वांट टू से समथिंग टू यू इन बांग्ला लैंग्वेज, और बांग्ला में मैं आपसे कुछ कह रहा हूं एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, तो तब क्या होगा? ये जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है पूरा नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन अल्टीमेटली रिजल्ट्स कॉम्प्रिहेंशन। अगर कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं हो रहा है उस मैसेज से, चाहे बोलने के रूप में और चाहे लिखने के रूप में, तो तब कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता। तो कम्युनिकेशन के 3 पार्ट हमने क्या बोले? फर्स्ट वन इज एनकोडर। एनकोडर एनकोड्स और ड्राफ्ट्स अ मैसेज। decoder basically he is supposed to decode और grasp the message, और उससे अल्टीमेटली मैसेज के थ्रू उसके क्या हो रहा होता है? कॉम्प्रिहेंशन। तो दैट इज द
थर्ड स्टेज कॉम्प्रीहेंशन। तो ये हमें समझ लेना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो अल्टीमेटली अगर कॉम्प्रीहेंशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ और डेफिनेशन भी है, जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने कहा है, वर्ड्स एंड द मेथड्स कंबाइनिंग देम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। तो हमारे पास वर्ड्स भी हैं और कुछ मेथड्स भी हैं, जिनको कंबाइन कर कर हम क्या करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर देते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई बार हम लोग कहते हैं ना, अभी वो कुछ बोलना नहीं है, जो गेम चल रहा है आजकल, बड़ा कई बार हम करते हैं कि भाई क्या है कि मोनो एक्टिंग मैं करूंगा एंड यू हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट टू से। तो कई बार क्या होता है, वर्बल के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कई बार वर्बल से नहीं, नॉन वर्बल से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। और नॉन वर्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे क्या है कि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन देते समय अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो इसका मतलब आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हो रहा होगा। और अगर ओवर कॉन्फिडेंट है, तो भी वो चीजें नहीं हो रही होंगी। जब एक कॉन्फिडेंस होता है तो एक प्रॉपर आई कांटेक्ट होता है और उससे चीजें डिलीवर हो रही होती हैं। तो दोनों तरह के हमारे चीजें इंपॉर्टेंट है, वर्बल लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स थ्रू वर्ड्स, थ्रू sentences, and non-verbal through body language, your facial expression, your gesture, your roll of fingers। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपने आप को कम्युनिकेट करते समय। अगर आप हैप्पी हैं तो यू शुड वियर अ वेरी हैप्पी एक्सप्रेशन। इफ यू आर सैड, अगर आप दुखी हैं तो चेहरे पर वो दुख का एक्सप्रेशन के साथ में आप उस बात को कह रहे होंगे, या आप नहीं भी कह रहे होंगे तो उस एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाता है कि व्यक्ति जो है इस समय दुखी है। तो ये भी एक डेफिनेशन थी। और दो डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडोल्फ की डेफिनेशन है कि लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ थॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ थॉट मीन्स, तो जिस तरीके से हम लोग ड्रेस पहनते हैं, और ड्रेस जो है, ड्रेस मेक्स और अटायर और गारमेंट्स, ये इट मेक्स ह्यूमन बॉडी अट्रैक्टिव। इन द सेम वे वो जो थॉट्स हैं, दे लुक अट्रैक्टिव इन इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। भाषा के माध्यम से हम उन्हीं विचारों को सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं। जितने भी हमारे पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अलग से वर्ड्स कॉइन किए हैं। दे हैव नॉट कॉइन्ड न्यू वर्ड्स। तो द वर्ड्स आर सेम, but they have designed the fabric of words in such a nice manner that it results in the form of piece of poetry। कोई एक कवि है, तो इसीलिए बोलते हैं ना, ये अपने आप में क्या है, जगलरी ऑफ वर्ड्स। जगलरी ऑफ वर्ड्स माने शब्दों की बाजीगरी। शब्दों की बाजीगरी वही शब्द हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों को पिरोकर किसी ने एक बहुत सुंदर कविता तैयार कर दी। उन्हीं शब्दों को पिरोकर किसी ने एक बहुत अच्छा गीत तैयार कर दिया। उन्हीं शब्दों को पिरोकर एक बहुत अच्छी कहानी, एक बहुत अच्छा आर्टिकल तैयार कर दिया। तो ये अपने आप में क्या है कि लैंग्वेज मेक्स आवर थॉट्स वेरी इंप्रेसिव। मुझे ध्यान है, सिद्धू एक बार कमेंट्री कर रहे थे और सचिन तेंदुलकर को शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे। तो शोएब अख्तर उन दिनों बहुत नाम था, तो शोएब अख्तर ने जब बॉलिंग करी तो जो एक दो बाउंस हुए, उसके बाद में तीसरी बार में इन्होंने सिक्स हिट किया। तो शोएब अख्तर जो थे, उन्होंने दो तीन बार जंप किया और वो बैठ गए। सो व्हाट सिद्धू सेड, जस्ट लाइक लास्ट बबल्स ऑफ सोडा वाटर, जस्ट लाइक लास्ट बबल्स ऑफ सोडा वाटर। आप देखिए कि कितना एक्ट एक्सप्रेशन है ये। इसको वो दो तीन बार उन्होंने जंप किया और उसके बाद वो बैठ गए, तो कितना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस किया, जस्ट लाइक लास्ट बबल्स ऑफ सोडा वाटर। तो ये जितने भी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, उन शब्दों को सुंदर तरीके से पिरोना वो जानते हैं। सैमुअल जॉनसन ने कहा कि लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ थॉट एंड इन मैटर ऑफ ड्रेस वी गो अकॉर्डिंग टू फैशन एंड नॉट कन्वेंशंस। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर हुआ है। तो लैंग्वेज अपने आप में क्या है कि ड्रेस ऑफ थॉट तो है, लेकिन जब ड्रेस है तो ड्रेस के मामले में हम लोग वी गो अकॉर्डिंग टू फैशन। जैसा फैशन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर रहे होते हैं। आप देखिए आजकल फैशन है, आगे मैं उस पर बात करूंगा कि आजकल अमेरिकन स्टाइल है। अमेरिकन स्टाइल होने के कारण से, जैसे हम लोग बोलते थे, ब्रिटिश वर्ड है फुटबॉल और अमेरिकन वर्ड है उसके लिए सॉकर।
ब्रिटिश वर्ड है बिल्डिंग, अमेरिकन वर्ड है अपार्टमेंट। ब्रिटिश वर्ड है बेसिन, वॉश बेसिन, और अमेरिकन वर्ड है सिंक। आप देखिए स्पेलिंग्स हैं, कलर चेंज हो रही हैं, प्रोनाउंसिएशन, फाइनल एंड फिनाले, गार्जियन एंड गार्डियन, एजुकेशन एडुकेशन। तो जिस तरह का फैशन होता है इसको अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे होते हैं, एंड मेनी अ टाइम्स वी हैव बीन वायलेटिंग, स्पेशली द राइटर्स, द पोएट्स, दे दे वायलेट डिफरेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, क्योंकि वो इसको, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी और आर्टिस्टिक लिबर्टी। एक इंटरमीडिएट में पोएम हुआ करती थी, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसकी थर्ड लाइन मैं अक्सर कोट करता हूँ। पोएम कुछ इस ढंग से है, आई थिंक आई एम ऑडिबल लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, yes. हाँ, तो इस पोएम की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से है, अ, ये शाम का समय है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मीन्स द बेल्स इन द चर्च। So the bells in the church they have been ringing and they are the symbol of parting of day. चर्च में जिस समय सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस समय बेल्स जो बजती हैं, तो द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द रिंगिंग बेल्स इन द चर्च दे आर द सिंबल ऑफ पार्टिंग ऑफ डे। इट मीन्स दिस इज टाइम ऑफ इवनिंग। पोएट वही बात कह रहा है इवनिंग, लेकिन उसी बात को घुमा घुमा कर कैसे कह रहा है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, the lowing heard wind slowly over the lea। इट मीन्स शाम के समय में क्या हो रहा होता है कि एक तो चर्च में बेल्स बज रही हैं और रंभाते हुए पशु जो है आवाज करते हुए रंभाते हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, जो बता रहा है कि शाम का समय है। द प्लूमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वियरी वे, और जो किसान है वो भी थके हुए वापस अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, थोड़ी देर में क्या होगा, अंधकार हो जाएगा और सब अपने अपने घरों में होंगे और चारों तरफ सिर्फ अंधकार और अंधकार ही होगा। तो द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लूमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज वेरी वे एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। इसका जो थर्ड लाइन है, दिस इज ए कंप्लीट वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर। इसमें पूरा पूरा ग्रामर के नियम को अवहेलना की गई है। वो क्या है, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज वियरी वे। प्लोमैन मीन्स फार्मर, किसान। होमवर्ड माने घर की तरफ, प्लोट्स चले आ रहे हैं, वियरी वे, वियरी मीन्स थके हुए, वे मीन्स रास्ते। तो किसान जो है वे थके हुए रास्तों से घर की तरफ चले आ रहे हैं। क्या ये ग्रामेटिकली सही है कि किसान थके हुए रास्तों से घर की तरफ चले आ रहे हैं? क्या रास्ते थके हुए हैं या किसान थके हुए हैं? किसान थके हुए हैं। तो लाइन तो ऐसी होनी चाहिए थी, द वेरी प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज वे, लेकिन लाइन कुछ ऐसी है, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज वियरी वे। तो ये अपने आप में एक वायलेशन है, और इसको फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार की भाषा में एक, ये एडजेक्टिव को जो हमने ट्रांसफर किया है इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये जो एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है वियरी मीन्स थके हुए, इसको वहां से इधर शिफ्ट कर दिया, तो इससे दो फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास आए। एक तो ट्रांसफर्ड एपिथेट और दूसरा एलिट्रेशन, अनुप्रास, जहां पर क्या है कि एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, वियरी वे, पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, चीजें जो जितनी भी फिगरेटिव लैंग्वेज है, फिगर्स हैं, वो क्या करती हैं, भाषा को हमारे सुंदर बनाने का काम कर रही होती हैं। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जब पोएट ने थर्ड लाइन लिखी, उनको फोर्थ लाइन मिली ही नहीं कि मैं क्या लिखूं, तो उन्होंने क्या किया, उसी लाइन का रिपीटेशन कर दिया, और उसी से इतनी जबरदस्त पोएटिक ब्यूटी आई कि these lines have become immortal, and this piece of poetry of Robert Frost has made him immortal. The woods are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। तो ये कुछ लाइनें हैं। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि लैंग्वेज इज द ड्रेस ऑफ थॉट,
And in matter of dress, we go according to fashion and not conventions. It means हम लोग फैशन से चल रहे होते हैं, कन्वेंशन रूल से नहीं। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, ये जो किसी भी लेटर में हम लिख रहे होते हैं, तो हमने वी हैव नेवर रेज्ड एनी इफ्स एंड बट्स, एनी क्वेश्चंस कि हम यहाँ पर देयरफॉर क्यों लगाएं, क्योंकि ब्रिटिश पीपल, इट वाज अ ट्रेंड, इट वाज अ फैशन कि वो इस ढंग से इंग्लिश को लिखते थे, एंड सिंस इट वाज देयर लैंग्वेज, तो इसलिए इस पर हम कोई इफ्स एंड बट्स लगाते नहीं है। लेकिन अपने आप में क्या है, दैट हैज बिकम अ रूल। बोलते हैं ना, लैंग्वेज के साथ में भी वो बात रही है जो हम कहते हैं कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुराने समय में द ब्रिटिश पीपल, सो दे वर माइटी, तो जो उन्होंने रूल्स बनाए तो वही अपने आप में राइट थे। और आज के समय में जो अमेरिकन इंग्लिश है, इट हैज बिकम ट्रेंड ऑफ द डे, इट हैज बिकम यू नो मोर पॉपुलर इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि क्या है कि दे आर माइटी नाउ। तो इस तरह की कुछ चीजें लैंग्वेज के साथ में हो रही होती हैं। और मैं दो सेंटेंसेस बोलूंगा, इन सेंटेंसेस पे गौर कीजिएगा। एक सेंटेंस है ही इज इंग्लिश, दूसरा है ही स्पीक्स इंग्लिश। ग्रामेटिकली हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज द इंग्लिश, दूसरा है ही स्पीक्स इंग्लिश। इन दोनों में क्या कुछ आपको दिमाग में कोई बात आ रही है इनको देखकर, इन दो सेंटेंस, कुछ भी बात जो दिमाग में आ रही हो? ही इज इंग्लिश या ही इज द इंग्लिश, दूसरा है ही स्पीक्स इंग्लिश। सर बताइए इधर भी। कोई भी बात जो दिमाग में आ रही हो इनसे। ये कहा है कि एक एक अंग्रेज है और एक अंग्रेजी बोलता है। बिल्कुल सर, परफेक्ट, यही आंसर है, यही आंसर है कि एक अंग्रेज है, दूसरा अंग्रेजी बोलता है। लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं, यू नो, कि अप टू ईयर 1700 दीज टू सेंटेंसेस वर इंटरडिपेंडेंट। 1700 तक, वर्ष 1700 तक these two sentences were interdependent कि he speaks English because he is English, या he is English so he speaks English. English was confined only to the British people. It was only the language of the English people. But we right now we are in 2022, in 21st century, और आज बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। द more number of speakers of English you will find in India in comparison to the British. इंग्लैंड में अगर आप चल जाएंगे, वहां से ज्यादा इंग्लिश बोलने यहाँ वाले यहाँ मिल जाएंगे। इसके पीछे रीजन ये नहीं कि इंडियंस को इंग्लिश ज्यादा आती है इसलिए ज्यादा बोलते हैं। अरे उनसे पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है। कितने इंग्लैंड और कितने छोटी छोटी कंट्रीज वहां पर हैं, अगर एक उत्तर प्रदेश को आप मिला देंगे तो कई सारी कंट्रीज मिलाकर उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर, और हम कहें कि 1 और 2% या 3% लोग भी बोलते हैं तो भी उनसे ज्यादा हो जाएंगे। सो द सिनेरियो इज एंटायरली चेंज्ड टुडे अराउंड द ग्लोब। पीपल दे स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज नोन एज लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका और इंटरनेशनल लैंग्वेज। लिंग्वा फ्रैंका मीन्स फ्रैंकली you may use this language in any part of the world, in any part of the globe, in any part of the country you visit, you will find some speakers of this language. If you go to South India, so it would be convenient for you if you have okay sort of knowledge of English language, because there it serves as link language. वहां पर वो लिंक लैंग्वेज का काम कर रही होती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो। अगर आप विदेश जाएंगे तो वहां पर भी ये कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको कम्युनिकेशन में इजी पड़ता है। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस को हमें प्रमोट करना चाहिए, लैंग्वेजेस को हमें सीखना चाहिए। और एक रशियन थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिशियंस अराउंड द ग्लोब आर सेम, पॉलिटिशियंस अराउंड द ग्लोब आर सेम, दे ट्राई टू मेक ब्रिजेस वेयर देयर आर नो रिवर्स। पूरे विश्व के राजनीतिज्ञ एक ही जैसे हैं, तो वहां पर पुल बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर नदियां है ही नहीं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि पहले जानबूझकर खाई बनाते हैं और फिर पाटने की कोशिश करते हैं। तो लैंग्वेज को लेकर भी अगर हम बात करें तो इस तरह की जो प्रिजुडिसेस हैं, है ना,
इस तरह के बहुत अधिक रहे हैं, कई तरह के पूर्वाग्रह भाषा के साथ में जुड़े रहे हैं। लेकिन यू नो वी शुड थिंक ब्रॉडली, वी शुड हैव अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इन अ ब्रॉड कैनवास वी शुड थिंक, और अधिक से अधिक लैंग्वेजेस को हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एंड इंग्लिश, since we know it is international language and it is lingua franca, so it is very much necessary, uh, not only teachers, the students, they should also learn it, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई शुड वी टीच इंग्लिश टू अवर स्टूडेंट्स, हम क्यों सिखाएं बच्चों को इंग्लिश, कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक आंसर ये भी होता है, कई सारे आंसर्स के साथ में, कि हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ आवर हार्ट, but English is the language of our stomach. It means English has become language of employment. नौकरी पाना थोड़ा आसान है, और बच्चों को हम इसलिए भी सिखाएं क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों के लिए आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बहुत अधिक फायदे हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब 100% ये बात बिल्कुल सही होगी, लेकिन कई मायनों में बात सही लगती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक भाषाओं को सीखने की कोशिश करनी चाहिए, एंड सिंस इट हैज बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो वी शुड एक्सेप्ट इट, वी शुड एडमायर इट। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। One is semantic aspect, another one is phonetic aspect, then graphic aspect, and then phonic कम graphic aspect। ये कोई बड़ी बात नहीं है, you know these are jargons। आज के समय में क्या है कि अगर कोई सरल शब्दों में अपनी बात कह देता है तो उसको बुद्धिमान नहीं माना जाता। आजकल क्या है, पीपल यूज एब्रीवेशंस, पीपल यूज jargons, और ऐसे ढंग से चीजों को कहिए ताकि दूसरे को समझ में ना आए, ताकि आप इंटेलेक्चुअल दिखाई दें। लेकिन बात बिल्कुल सिंपल सी है। सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज मींस अंडरस्टैंडिंग या लिसनिंग, लिसनिंग स्किल। फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, फोन मींस साउंड, जो साउंड से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड स्पीकिंग। सिमेंटिक मींस अंडरस्टैंडिंग या लिसनिंग, फोनेटिक मींस स्पीकिंग। ग्राफिक मींस जिसमें ग्राफिक्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं तो ग्राफिक्स के रूप में है, तो अपने आप में जो राइटिंग स्किल है दैट इज कॉल्ड ग्राफिक एस्पेक्ट। और जहां पर फोनिक भी है और ग्राफिक भी है, लिखा हुआ है और उसके साथ में साउंड भी जुड़ा हुआ है, माने लिखे हुए को हम पढ़ते भी हैं, तो ये अपने आप में क्या है, रीडिंग स्किल। दीज आर द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। कल हमने इसकी भी बात हमने करी थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में 2 हिस्से हैं, वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल है। और वर्बल में अगर हम बात करें तो जैसे ओरल की अगर हम बात करें तो ओरल में क्या है, स्पोकन लैंग्वेज। नॉन वर्बल में अगर हम ओरल की बात करते हैं तो वो क्या है, जैसे लाफिंग, क्राइंग, कफिंग एटसेट्रा। ये अपने आप में क्या है, ये जो है अपने आप में नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है। इसी ढंग से अगर नॉन ओरल की बात करें हम लोग, तो रिटन लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज, ये वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। लेकिन हमारा जेस्चर्स हो गए, पोस्चर्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, ये हमारे नॉन वर्बल के अंदर जो नॉन ओरल कम्युनिकेशन है उसका हिस्सा है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वर्बल के भी 2 हिस्से हैं, नॉन वर्बल के भी 2 हिस्से हैं, एक ओरल एक नॉन ओरल। तो वर्बल के ओरल में स्पोकन लैंग्वेज है, नॉन वर्बल के ओरल में लाफिंग, क्राइंग, कफिंग, जो हमारे इमोशंस जिनको हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ये है। और नॉन ओरल दोनों में, इसमें रिटन लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज है, तो इधर जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज भी है। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज। तो देयर आर 2 पर्सपेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज सीखने के 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव जो अपने आप में ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव था, और ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि ह्यूमन माइंड इज लाइक एन एम्प्टी स्लेट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज या लैंग्वेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड। जो हमारी पावलोव, स्किनर, इनकी जो थियोरीज हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं व्यवहारवाद, या ये जो बात हम कह रहे होते हैं, तो ये अपने आप में क्या है कि एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉलेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड, और बच्चे का जो दिमाग जो है खाली बर्तन के समान है। इट मीन्स द रोल ऑफ टीचर इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू चाइल्ड। इफ टीचर विल नॉट टीच, इफ टीचर इज नॉट गोइंग टू टीच, स्टूडेंट्स विल नॉट लर्न। ये एक सीधी सी बात है जो हम मानते थे व्यवहारवाद के अंदर। लेकिन आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की,
तो कंस्ट्रक्टिविज्म जिसमें कि मान के चलते हैं कि बच्चा स्वयं अपने लिए ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो वो बताता है कि मैन हैज इनेट लैंग्वेज सिस्टम्स विच गेट अनफोल्डेड इन ए नेचुरल लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट। तो 1970s के समय में नॉम चॉम्स्की, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉग्निटिव लिंग्विस्ट, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन्स पावर ऑफ अवर ब्रेन। कॉग्निशन मीन्स पावर ऑफ अवर ब्रेन, संज्ञानात्मक पक्ष की जो हम बात करते हैं, संज्ञान। तो ये पहले माना जाता था कि चाइल्ड जो है, ही डजंट नो एनीथिंग, and in the company of his guru or in the company of his teacher, he gets all the knowledge. If teacher, the external factor is important, with the external factor teacher is important. If teacher is not teaching students, they will not learn. लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा विद्यालय में आता है तो he is not an empty slate. He is coming with lot many things. भाषा के संदर्भ में हम बात करें कि हिंदी भाषा या मातृभाषा की बात करें, तो he is coming with a complete sentence. He is able to communicate. He is able to express himself in the form of a complete sentence. वो अपने इमोशंस को, अपनी जो नीड्स हैं उनके बारे में वो बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, और उसके पास में अपना कुछ ज्ञान भी होता है। और आज के समय में जिस समय बच्चे जो हैं उनके पास मोबाइल और अन्य तरह की जो संसाधन अवेलेबल हैं, तो उनसे भी बच्चे काफी कुछ सीख सकते हैं। तो अब जो माना जाता है कि मैन हैज इनेट लैंग्वेज सिस्टम्स विच गेट अनफोल्डेड। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अवर ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। जितनी भी हमारी तार्किक चिंतन है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग है, एंड जितना भी हमारी वोकेबलरी है, इट इज गवर्न एंड इट इज स्टोर्ड बाय लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ अवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फेयर से गवर्न होता है। यहां पर एक सॉफ्टवेयर का उन्होंने नाम बोला LAD। L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एक्विजिशन, एक्वायर करना, A फॉर एक्विजिशन, D फॉर डिवाइस। लैंग्वेज, एक्विजिशन, डिवाइस। तो ऑलरेडी ह्यूमन चाइल्ड इज born with this software. He has already this software in the left part of the brain, which get unfolded in a natural linguistic environment. If अगर एक गढ़वाली बच्चा है और उसको इमीडिएट जो है बर्थ के कुछ समय में ही एक कुमाऊनी फैमिली में शिफ्ट कर दिया जाए, तो he will be receptive, he will be learning कुमाऊनी लैंग्वेज वेरी इजीली। वो कुमाऊनी लैंग्वेज को ग्रेस्प कर लेगा। एक बंगाली परिवार में जन्म हुआ बच्चा पंजाबी उसको परिवेश में रखा जाएगा तो वो पंजाबी भाषा सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर कई सारे, या हमारे मोबाइल में, एंड्रॉयड में कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जिन सॉफ्टवेयर का हम यूज नहीं करते वो अपने आप में पैसिव स्टेज में चले जाते हैं। जिनको हम एक्टिवली यूज कर रहे होते हैं वो बार बार अपडेट होते चले जाते हैं, उनका वर्जन अपडेट होता चले जाता है। ठीक यही चीज लैंग्वेज के साथ में, यही चीज हमारे ब्रेन के साथ में भी है कि वो सॉफ्टवेयर तो हमारे पास में है। जैसे मोगली की कहानी है कि मोगली को जो है भेड़ियों के बीच में वो रहा, वो भेड़ियों की भाषा सीखा। उसी ढंग से वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोल सकता था, भेड़ियों की भाषा ही। तो कारण क्या है कि वो सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन जब तक नेचुरल लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो उन भाषाओं को सीख नहीं पाएगा। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव लिंग्विस्ट। लैंग्वेज की फील्ड में जो लोग काम करते हैं दे आर कॉल्ड लिंग्विस्ट। जैसे एजुकेशन की फील्ड में काम करते हैं एजुकेशनिस्ट, और लैंग्वेज की फील्ड में जो काम कर रहे हैं तो लिंग्विस्ट। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंग्विस्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी को इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल लिंग्विस्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जो मान के चलते हैं कि कल्चर से इंसान लैंग्वेज सीखता है, तो दे आर कॉल्ड कल्चरल लिंग्विस्ट। कुछ ऐसे हैं जो मान के चलते हैं कि नहीं, कि वो सॉफ्टवेयर तो हमारे अंदर मौजूद है, तो दैट इज कॉल्ड कॉग्निशन, तो कॉग्निटिव लिंग्विस्ट। तो ये दो अपने आप में एक पर्सपेक्टिव है। एक तो ये कि बच्चा खाली बर्तन है, दूसरा ये है कि नो, कि द चाइल्ड इज नॉट लाइक एन एम्प्टी वेसल, he is born with the innate capability to learn and to produce language। और यही अपने आप में मॉडर्न पर्सपेक्टिव है, जिस पर कि हम लोगों को एज ए टीचर, एज ए 21st सेंचुरी टीचर, एज इनोवेटिव टीचर हमें सोचने की जरूरत है और हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम पहले वाली अप्रोच पे काम कर रहे हैं तो हमारे जो सीखने सिखाने के जो बुनियादी तौर तरीके हैं क्लासरूम के अंदर, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। यू नो, दीज
basically these psychological theories, they have wider implications, wider implication in terms of the pedagogy, in terms of uh, the methodology वी डेप्लॉय इन अवर क्लासरूम, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम अपनी कक्षा कक्ष जो सीखने सिखाने के बुनियादी तौर तरीके हैं उनको हम लोग डिवाइस कर रहे होते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम नहीं सिखाएंगे और बच्चा सीखेगा नहीं, तो ये भी एक अप्रोच है। तो उसमें ये टीचर डोमिनेटेड क्लास हो गई, ये चाइल्ड सेंटर्ड क्लास नहीं हुई, ये टीचर डोमिनेटेड हुई। लेकिन जब हम मान रहे हैं कि बच्चा जो है अपने आप में उसके अंदर कैपेबिलिटी है और जो एनवायरनमेंट हमने उसके लिए क्रिएट करना है, तो ये अपने आप में क्या है, दिस इज चाइल्ड सेंटर्ड क्लास, दिस इज चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी एंड दिस इज चाइल्ड सेंट्रिक क्लास। जो आजकल हम बात करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा तो आप सोचे देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चा टीचर से कह रहा है, आई कांट लर्न द वे यू टीच, आई कांट लर्न द वे यू टीच, कैन यू नॉट टीच द वे आई लर्न। सिर्फ इसको गौर कीजिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। आई कांट लर्न द वे यू टीच, कैन यू नॉट टीच द वे आई लर्न। तो अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड हैं तो हमें अपने ऑब्वियसली डेफिनेटली वी विल बी यू नो रेगुलरली कंटेम्पलेटिंग, विल बी रेगुलरली रिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स अवर टीचिंग मेथोडोलॉजी, अवर टीचिंग स्टाइल, कि हमारे को क्या टीचिंग स्टाइल अपनानी चाहिए क्लासरूम के अंदर, जिससे कि बच्चा जो है भाषा इजीली सीख सके। तो इस तरह की चीजें हैं। दूसरा एक है कि ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आई हैव टू टीच इंग्लिश टू राम, आई हैव टू टीच इंग्लिश टू राम। सो इफ आई हैव टू टीच इंग्लिश टू राम, तो इसके लिए मुझे किस चीज की जानकारी होना जरूरी है, किस चीज का नॉलेज होना जरूरी है? एनी आंसर? आई हैव टू टीच इंग्लिश टू राम या सीता, तो इसके लिए मुझे किस चीज का नॉलेज होना जरूरी है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है थोड़ा सा। Knowledge of EGS way. हाँ, ज्यादातर आंसर यही आता है कि वी शुड हैव प्रफाउंड और गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। लेकिन इफ वी आर रिफ्लेक्टिव टीचर्स, तो नॉट ओनली वी शुड हैव प्रफाउंड और साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बट ऑल्सो वी शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ आवर लर्नर, इट मीन्स राम एंड सीता। जब मैं कह रहा हूं कि हमें ना केवल अपनी मतलब जो हम विषय पढ़ा रहे हैं उसका ज्ञान हो, बल्कि जो सीखने वाला है उसका भी ज्ञान हो। इसका मीन्स उसका सोशल लिंग्विस्टिक, उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्लासरूम के हिसाब से उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका सीखने का तरीका क्या है, किस तरीके से वो अच्छे ढंग से सीख सकता है, वो कौन कौन से मैं अपनी मेथोडोलॉजी में बदलाव ला सकता हूँ, वेदर इट शुड बी थियोरेटिकल और इट शुड बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी इंटरैक्टिव, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू मैं बच्चे को साथ में इंटरेक्शन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर हम सोच रहे हैं तो इट मीन्स वी आर इनोवेटिव टीचर्स, वी आर रिफ्लेक्टिव टीचर्स। मेरे ख्याल से ये बात आप तक पहुंच रही होगी, कोई इसमें डाउट तो नहीं है ना जी। नेक्स्ट स्लाइड ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि टीचिंग अबाउट द लैंग्वेज और टीचिंग द लैंग्वेज। when we were students, just think about the days when all of us we had been in our school days. All of us we learned English language, and all of us we learned language with the help of grammar. यही तो हुआ कि हमें ग्रामर बहुत सिखाई गई। यूपी बोर्ड हुआ करता था, यूपी बोर्ड में न्यू स्टाइल काका पब्लिकेशन की हुआ करती थी, उसी से सब लोग पढ़ा करते थे। ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से उसी से हैं, कुछ उसके बाद के भी होंगे। तो ग्रामर पर बहुत जोर दिया जाता था, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड पे बहुत जोर होता था। तो होता क्या था कि आवर टीचर्स दे टॉट नॉट द लैंग्वेज, दे टॉट अस अबाउट द लैंग्वेज। और उसका रिजल्ट क्या है, वी ऑल्सो नो अ लॉट मच अबाउट द लैंग्वेज, बट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट
ourselves using that particular language. उस भाषा के व्याकरण को तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमें क्या किया कि our teachers they taught us rules, so we are able to reproduce what only rules. उन रूल्स को हम अप्लाई नहीं कर पाए, वो सिचुएशंस क्लासरूम में अवेलेबल ही नहीं थी। तो ये एक मेजर चैलेंज है टीचिंग अबाउट द लैंग्वेज और टीचिंग द लैंग्वेज। इस पर हमें बहुत सोचने की जरूरत है कि टीचिंग अबाउट द लैंग्वेज क्या है और टीचिंग द लैंग्वेज क्या है। तो जब हम ये सोचते हैं तो ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठते हैं, हाउ शुड आई टीच इंग्लिश, वेदर माई वे ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज फाइन, how should I ensure and enable my students to learn the various skills and learn to use them in real life situation? बच्चों को मैं ऐसा कैसे सिखाऊं? All of us we learned English language in the form of translation cum grammar. यही तो हुआ, ट्रांसलेशन कम ग्रामर या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हुआ करता था, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इसी के थ्रू हम लोगों ने इंग्लिश सीखी। और कम्युनिकेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन इज समवट डिफरेंट, हमें रूल्स मालूम है, वोकैबुलरी हमारे पास में है, लेकिन जब बातचीत करने का है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज ए वेरी रैपिड प्रोसेस, वेरी इंस्टेंट प्रोसेस, जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन की कोशिश करते हैं, तो उस समय क्या होते हैं कि दीज रूल्स जो हमने सीखे थे, दे बिकम ऑब्स्टेकल्स, दे बिकम्स शैकल्स, और उस कारण से हम लोग रूल्स में ही भटकते रह जाते हैं और कई बार हमारे को सुटेबल वोकैबुलरी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं मिल रहा होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ये है कि जब हमने किसी से कोई प्रश्न किया तो वट एवर एज पर द नीड ऑफ आर, एज पर नीड ऑफ कम्युनिकेशन, वो तुरंत उसका आंसर दे सके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वट हैपन्स व्हेन एनीबडी और समबडी आस्क्स अस एनीथिंग and he tries to interact with us, so what happens, we feel ourselves tongue tied। उस समय बिल्कुल जो है बिल्कुल हमारे हाथ पैर जाम हो जाते हैं, हम लोग अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे को उस तरीके से सीखने सिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन क्या हम लोग अपने कक्षा के जो बच्चे हैं उनके साथ में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि एटलीस्ट दे शुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड दे शुड सोर हाई और फ्लाई हाई इन द स्काई। उनको कम से कम ऐसे मौके मिले कि वो लैंग्वेज के साथ में एक्सप्लोर कर सकें, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकें। दे शुड बी एबल टू प्ले विद लैंग्वेज। जंगलरी ऑफ वर्ड्स जो हम कहते हैं वो अपने आप में यही है, शब्दों की बाजीगरी, शब्दों के साथ खेल सकें वो। इसी ढंग से कुछ और क्वेश्चन भी है कि डू वी ओनली गिव इंफॉर्मेशन टू अवर स्टूडेंट्स एंड दे रिसीव देम? इफ सो, इज लैंग्वेज टीचिंग ओनली पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक? क्या सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कन्वे करना ही अपने आप में क्या है, जो हमने कल बात करी थी कि कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है या स्किल बेस्ड है? व्हाट नॉलेज डू अवर चिल्ड्रन ब्रिंग और पजेस एज दे कम टू स्कूल? तो इससे हम लोग जब सोच रहे होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं पेडागोजी की तरफ। याद ही रखिएगा कि देयर आर टू वर्ड्स, वन इज एंड्रागोजी एंड अनदर वर्ड इज पेडागोजी। एंड्रागोजी मीन्स द वे एडल्ट्स लर्न, the psychology of adults, है ना, the psychology or the science how adults learn। and pedagogy means जो डॉक्टर्स होते हैं ना बच्चों को, उनको बोलते हैं पेडिट्रिशियन बोलते हैं। पेडा मीन्स चिल्ड्रन, सो द वे चिल्ड्रन लर्न, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी। और जब हम ट्रेनिंग में होते हैं तो ट्रेनिंग में देयर इज ए वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंड्रागोजी टू पेडागोजी। अभी हम लोगों ने जब शुरुआत करी तो we started our session with a prayer and with a rhyme। So obviously such kind of rhymes and such kind of prayers, they are useful, they are very beneficial for our children। लेकिन क्या है, हम बड़े हैं and we have been participating in this training program not for the not only for the enrichment of ourselves but for the betterment of our children। तो बेसिकली फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस वर्कशॉप में अगर हम आज हैं तो जो कुछ हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो अपने लिए कम है, वो हमारे क्लासरूम के लिए, हमारे बच्चों के लिए ज्यादा है। इट्स लाइक मेनी अ टाइम्स इट इज एक्सपेक्टेड कि एडल्ट्स दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग बट दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन। सो फ्रॉम एंड्रागोजी टू पेडागोजी, इसलिए कई बार ट्रेनिंग में हमें बच्चों जैसा ही एक्ट करना पड़ता है, बच्चे जैसे ही बन जाना पड़ता है,
बच्चे जैसे ही हम लोग चीजों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना? तो टीचिंग मेथोडोलॉजी हैज चेंज सिग्निफिकेंटली ओवर द इयर्स। जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उसमें रेसिटेशन एंड रूट मेमोराइजेशन की ज्यादा बात थी, लेकिन जो मॉडर्न मेथड है, जो हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चनिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया एंड इंटरेक्शन, इनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। एंड स्पेशली इन ए लैंग्वेज क्लास, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि एक लैंग्वेज क्लास में अगर हम कहें कि स्टूडेंट्स आर सपोज टू कीप देमसेल्व्स मम, दे डोंट हैव टू स्पीक, तो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि लैंग्वेज क्लास में अगर बच्चों को बोलने का मौका ना दिया जाए और बच्चों को अरे तुम शांत रहो, तो बच्चों का भाषाई विकास कैसे होगा? तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चनिंग, क्रिएटिविटी एंड इंटरेक्शन, इस तरह की जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी है, इसको हम अपने क्लासरूम के अंदर लेकर आए। तो इससे फिर हम एक और चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो क्या है? लर्निंग द लैंग्वेज वर्सेस acquiring अ लैंग्वेज। सो इफ आई आस्क्ड यू कि योर मदर टंग, वेदर योर मदर टंग इज गढ़वाली और कुमाऊनी और हिंदी, जिसको हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो वेदर यू लर्न यू दैट लैंग्वेज और यू अक्वायर्ड दैट लैंग्वेज, क्या उस भाषा को आपने सीखा या आपने उसको अर्जित किया? Acquired. यस, ऑब्वियसली वी अक्वायर्ड। तो लर्निंग और एक्वायरिंग में अंतर क्या है? कि लर्निंग अपने आप में कॉन्शियस है, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि मतलब कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न अ लैंग्वेज। लेकिन जब हमने मदर टंग को या फर्स्ट लैंग्वेज को सीखा, तो इट वाज नॉन कॉन्शियस। फर्स्ट लैंग्वेज में क्या होता है, रिपीटेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, सॉरी लर्निंग में रिपीटेशन, चीजों को बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसीलिए जब मैंने कहा कि सेकंड लैंग्वेज सिखाने के तरीकों में कल मैंने रिपीटेशन की बात भी करी थी। लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज है या मदर टंग है, वो रिकरेंस, उसके अंदर रिकरेंस होता है। जैसे जो रिकरेंस का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा आरडी खुलवाते हैं ना बैंक में, तो आरडी अपने आप में क्या कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मींस पुराना जो है वही अपने आप में क्या कर रहा है, और एनरिच होकर और समृद्ध होकर वो और सामने आ रहा होता है। प्रैक्टिसिंग लैंग्वेज स्किल्स लर्निंग में है, जबकि इसमें कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इधर लीनियर ग्रोथ है, अल्फाबेट से वर्ड की तरफ, वर्ड से सेंटेंस की तरफ, जबकि एक्वायरिंग में स्पाइरल ग्रोथ है। हम एक कनेक्टेड स्पीच, सेंटेंसेस, वर्ड्स, क्या जब आपने मदर टंग अपनी सीखी या फर्स्ट लैंग्वेज, तो क्या पहले आपने सिर्फ शब्दों को सीखा, फिर आपने वाक्यों को सीखा? ऐसा तो नहीं हुआ, साइमल्टेनियसली सब कुछ होता रहा, तो दैट इज कॉल्ड स्पाइरल ग्रोथ। फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर, सॉरी लर्निंग में, लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज हो रहा होता है, जबकि एक्वायरिंग के अंदर लर्निंग लैंग्वेज हो रहा होता है। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीजें हमारी, जैसे स्टैटिक टेक्स्ट है, इधर डायनेमिक टेक्स्ट है, इधर फॉर्मल है, इधर नॉन फॉर्मल है। स्टैटिक टेक्स्ट के मतलब है कि जैसे क्या है कि मैंने बच्चों को कोई वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करी, तो बच्चे को एक ही पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उन शब्दों का मीनिंग मालूम है। अगर वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, तो बच्चे उन शब्दों को कैसे यूज करना है कई बार नहीं जान पाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन लर्निंग एंड एक्वायरिंग। सो माय क्वेश्चन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, व्हाट वुड बी योर पर्पस इन योर क्लासरूम? आप लर्निंग की तरफ बच्चों को लेकर जाएंगे या एक्वायरिंग की तरफ लेके जाएंगे? ऑब्वियसली एक्वायरिंग की तरफ। लेकिन ऐसा क्लासरूम के अंदर क्या बुनियादी बदलाव हम लोग लेकर आ सकते हैं कि हम बच्चों को सेकंड लैंग्वेज अक्वायर करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें? तो कल जैसे कि हमने बात करी थी, एक मेथड था सिचुएशनल अप्रोच, एसओएच, एसओएस अप्रोच, सिचुएशनल, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, कि जो भी स्ट्रक्चर्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, सपोज इफ आई से कि क्या, स्टैंड अप, तो स्टैंड अप बोलते समय वो एक्शन भी साथ में आपको कर देना चाहिए। सिट डाउन, वो बोलते समय एक्शन भी साथ में करना चाहिए। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर, ओपन योर इंग्लिश बुक ऑन पेज नंबर 9। तो जो कुछ आप कह रहे हैं, साथ साथ में वो इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे हैं, साथ में उससे रिलेटेड जो जेस्चर होता है, जो एक्शन है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी क्लासरूम के अंदर है, सिचुएशनली उन सब चीजों को ट्रांसफर किया जाए और क्लासरूम के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे बड़ा पैराडॉक्स एंड सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि ऑल ऑफ अस वी नो कि द नेचुरल पैटर्न ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये तरीका है।
But when the students they come to our classroom, as soon as they join our schools, most of the teachers they start with, क्योंकि पेरेंट्स की भी डिमांड वही है, they start with राइटिंग स्किल, एबीसीडी लिखना सिखा देते हैं और चीजें लिखना, यही तो होता है। जबकि हम जानते हैं पहले लिसनिंग पे काम करने की जरूरत है, स्पीकिंग पे काम करने की जरूरत है। माना आज कोई हमारे को चाइनीज लिखना सिखाए, आज कोई ऐसी कोशिश करे कि हम लोग चाइनीज मतलब अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चाइनीज हमें सिखाए आज की डेट में अल्फाबेट्स के माध्यम से, तो आप सोच के देखिए जो हालत हमारी होगी वही हालत बच्चों की होती है। Students they want you know they want to get entertainment, they want some kind of enjoyment, they want some kind of learning with fun, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है राइम्स, स्टोरीज, रिडल्स, पजल्स, गेम्स, वर्ड अंताक्षरी, इस तरह की चीजें क्लासरूम के अंदर हम लोग लेके जाते हैं। तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे बहुत काम होगा। बच्चों पे क्या होगा कि इनिशियली लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स पे काम होगा। तो what would happen, it would create their interest towards language। इससे बच्चे इंग्लिश की तरफ, क्योंकि जब हम सीधे टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेटर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो वो अपने में इट बिकम्स ऑल ग्रीक एंड लैटिन, वो बच्चों के लिए अपने आप में वैसा ही हो जाएगा जैसा हमारे लिए चाइनीज है। तो इसलिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी में वो है ना कि फ्रॉम सिंपल से कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या है कि बच्चे जब गा रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, उसके बाद हम उनको लेकर जाते हैं कि भाई जो कुछ आप गा रहे हैं, जो कुछ आप बोल रहे हैं, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग और तब रोल होता है रीडिंग एंड राइटिंग का, बट हैपन्स जस्ट द वाइस वर्सा, जस्ट द रिवर्स ऑफ इट। तो ऑल द टीचर्स, all the participants who have been participating in this workshop, so this is my earnest appeal to all of you कि we need to rethink about our teaching methodology, our teaching style, and we need to think, we need to rethink कि how we can make our classroom conducive for English language learning, such kind of English language learning which is not actually learning, which is in the form of English language acquiring। तो अगर क्लासरूम के अंदर टीचर he himself is repeating number of words, number of phrases, तो students they are getting chance to listen to lot many new words, lot many new phrases, lot many vocabulary, and जो सेंटेंसेस हम अप्लाई कर रहे होते हैं, बच्चा उसी ढंग से बच्चे के दिमाग में उसकी इमेज बन रही होती है, और बच्चा भी नॉन कॉन्शियस वे में, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उन सेंटेंसेस को उसी सिनेटैक्टिक पैटर्न के साथ में बोल रहा होता है। ग्रामर का मतलब क्या है? ग्रामर का मतलब सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस ये सब नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, माई नेम इज विमल, माई फादर्स नेम आई स्टडी, तो बच्चा ही जो शब्दों को किस ढंग से पिरोना है, नेम माई विमल या माई नेम इज विमल, जब हम बच्चे को बोल रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में इमेज बन रही है, वो अपने आप समझ रहा है कि किस तरीके से कौन से शब्द को कहाँ रखा जाना है, व्हाट इज द सेंटेंस पैटर्न, क्योंकि सेंटेंस पैटर्न ऑफ हिंदी एंड सेंटेंस पैटर्न ऑफ इंग्लिश इज समटाइम्स डिफरेंट। अगर मैं कहूँ हिंदी में मैं विमल हूं, तो सबसे पहले कर्ता मैं, उसके बाद में कर्म विमल या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, उसके बाद में हूं माने क्रिया। अब अगर इसी ढंग से मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, आई विमल एम, जबकि इंग्लिश में क्या होगा, आई एम विमल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम बच्चे के सामने ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा शब्द बोल रहे होते हैं, सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, तो बच्चे के दिमाग में अपने आप इमेज बनती है, एंड नॉन कॉन्शियसली, जैसे हमारी मदर टंग के साथ में हो रहा है कि we started speaking our mother tongue in the form of complete sentence and with complete accuracy। So the same pattern we have to adopt, we have to apply, we have to use in our classroom। So now yes, ये कुछ फीचर्स हैं मदर टंग के। हाउ डू वी स्टार्ट acquiring language? Acquiring mother tongue is a non-conscious process. All of us we are familiar with this fact। वो non-conscious process होता है, and there is no conscious effort to learn।
नाइदर इज देयर एनी इंटेंशन टू टीच। तो इसका एट्रीब्यूट्स क्या है? डेलिबरेटली स्लो। जो मदर टंग है, मदर माँ जब बच्चे से बात करती है, इट इज डेलिबरेटली स्लो, इट इज फुल ऑफ लव। और जो कुछ बात की जाती है, इट इज वोवन अराउंड द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, इट इज द लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द इमीडिएट नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, एंड द मदर हैज नो इंटेंशन टू टीच एनीथिंग। तो ठीक इसी तरीके से हम कोशिश करें कि क्लासरूम के अंदर काफी सारी हम लोगों ने बातचीत कर ली। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा गेम है। तो आप लोगों को ये शब्द बनाने हैं, और के लिए 2 मिनट का समय है, जितने शब्द आप बना सकते हैं। इसमें खासियत यही जो मैंने कल बताया था, जैसा पहला वर्ड हमने बना रखा है कि जो ग्रुप ऑफ या बंच ऑफ लेटर्स भरा जाएगा वो दोनों जगह सेम भरा जाएगा। जैसे एस में अगर ये ए टी हम जोड़ देते हैं, तो SATURATE, तो वर्ड हमारा क्या बन गया? सैचुरेट। और ये मैंने कल आपको बताया था, ये पहला वर्ड है ONION, अनियन। तो इसी ढंग से बाकी शब्द आपको देखने हैं कि क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। 2 मिनट का समय आपके पास में, बनाइए। सो बन गए होंगे। Need some more time. ओके, बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना मिश्रा जी? सर ठीक हो रहा है ना ये? नहीं हो रहा है सर। तो इसको आप, ये प्रेजेंटेशन को आप स्लाइड शो में कर दीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। अच्छा सर, अच्छा सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है।
हो गया, कंप्लीट हो गया। यस सर, हो गया। अच्छा सर, चलिए शुरू करते हैं। सो पहला वर्ड क्या बना है? अनियन। इट शुड नॉट बी प्रोनाउंस्ड एज ओनियन, इट इज अनियन। दूसरा वर्ड क्या बना है? हाँ बोलिए बोलिए, स्पेलिंग। कौन सा लेटर भरे हैं इसके अंदर, कौन सा बंच ऑफ लेटर्स भरे हैं? LO। अगर हम दोनों में NG भर दें, LONGING, तो लॉन्गिंग हो जाएगा वर्ड। जो बंच ऑफ लेटर पहले में भरा जाना है वही दूसरे में भी भरा जाना है। अगला क्या है? क्या है? वैलेंटाइन। नहीं 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 नहीं, वैलेंटाइन नहीं। मैंने कहा ना, जो बंच ऑफ लेटर्स, जैसे ये मैंने पहले करके दिखाया था ना, पहला वाला, कि दोनों में AT ही आएगा। जैसे सैचुरेट वाले में पहले में A दूसरे में T, उसी ढंग से UR के बाद में पहले में A दूसरे में T, सेम बंच ऑफ लेटर्स आएगा। तो क्या आएगा? तीसरा वर्ड है वायलेशन, VIOLATIO। तो IO दोनों जगह भरा जाएगा, तो वर्ड आ जाएगा वायलेशन। चलिए फोर्थ वर्ड क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर, क्योंकि दोनों जगह क्या आएगा? AR। अगला वर्ड क्या है? फिफ्थ वर्ड? फिफ्थ वर्ड में क्या भरा जाएगा, कौन से लेटर्स भरे जाएंगे? यस, EN दोनों जगह भरा जाएगा। EN, तो सेंटीमेंट। फिफ्थ वर्ड हो जाएगा हमारा सेंटीमेंट। सिक्स्थ वर्ड क्या है? कोई भी बता दीजिए अगर बना है सही तो। चलिए मैं एक मैं एक क्लू आपको इसके लिए देता हूं। इसका मतलब, जो वर्ड बनेगा उसका मतलब है हिंदी में निर्भीक, निडर। अगर हम दोनों जगह लगा दें UN, UNDAUNTED, अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड मीन्स होता है निर्भीक, निडर। चलिए सेवेंथ वर्ड। चलिए इसके लिए आपको लिए टाइम दिया जा रहा है, इसको आप आराम से कर लीजिए। अभी आगे हम अगली स्लाइड में जा रहे हैं, पहले आप पूरा करेंगे। सब मैं नहीं बताऊंगा, कुछ आप भी बताएंगे ना। या तो आप बताइए सेवेंथ वर्ड क्या बना? एनीबडी? डिस्टिंग्विश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या लेटर्स भरे हैं? IS, और H एक क्लास में होना चाहिए था, डिस्टिंग्विश। अगला वर्ड क्या बना है? एट्थ? हिंदी में उस शब्द का मीनिंग होता है वक्ता।
वक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वक्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वक्ता, वक्ता मीन्स ऑरेटर। बिल्कुल सही बोला सर ने, ऑरेटर। तो ओ आर अगर हम भर दे दोनों जगह, ओ आर ए टी ओ आर, ऑरेटर। नाइन्थ वर्ड क्या होगा? कंडीशन, बिल्कुल ठीक है। टेंथ, हिंदी में इसका मतलब होता है परोपकारी, इंग्लिश में बोलते हैं बेनवोलेंट, BENEVOLEN, तो बेनवोलेंट। अगला वर्ड तो बहुत पॉपुलर वर्ड है टीचर्स के लिए, यस, करिकुलम। एंड द लास्ट वन इज सैलेड में भी काम आता है, और जो ग्रेवी बनती है उसमें तो बहुत काम आता है। Yeah, it is tomato. So, round of applause for all of you. Well done. So, now we go to next slide, and this is about sound system of English language. Yesterday we discussed that the sound system of English language is very peculiar. It is very distinctive, and many times it's very confusing. So just be very cautious about the pronunciation of the words. When in English class we speak, 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 why is break not rhymed with freak? Just see the spelling of break and freak. Spelling is almost similar, but the pronunciation is entirely different. Why is break not rhymed with freak? Will you tell me why it's true that we say so? ये जो SEW है इसका pronunciation होता है so. Why then we say so, but also few. SEW is so and FEW is few. जबकि similar words हैं, but the pronunciation is that much different. When a poet writes a verse, why is horse not rhymed with वर्स? अब आप देखिए VERSE का भी वही प्रोनाउंसिएशन है और WORSE का भी वही प्रोनाउंसिएशन है, जबकि हॉर्स और वर्ड्स एक जैसे दिखने में लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. व्हेन अ पोएट राइट्स अ वर्स, व्हाई इज हॉर्स नॉट राइम्ड विथ वर्स? Beard sounds not the same as hard. Lord sounds not the same as word. Cow is cow, but low is low. Shoe is never rhymed with toe. SHOE is shoe, while TOE is toe. Shoe is never rhymed with toe. Think of nose. Think of nose and dose and lose. Think of nose. NOSE is nose. DOSE is pronounced like DOWS, dose. And LOSE is lose. Think of goose, but then of choose. इधर गूज में स साउंड है और चूज में जेड वाला ज साउंड है. थिंक ऑफ गूज बट देन ऑफ चूज. कंफ्यूज नॉट कॉम विथ टूम. TOMB is tomb. Confuse not com with tomb
ये जो बाम होता है ना, BAAM, बाम, तो बेसिकली BOMB का जो प्रोनाउंसिएशन है इज बाम. कंफ्यूज नॉट काम विथ टूम और बाम. डॉल with roll or home with some. We have blood and food and good. Mold is not pronounced like could. There is pay and say. लेकिन पे और से तो एक जैसा है, बट पे का क्या हो गया? बट पेड एंड सेड. आई विल रीड but I have read. I will read, but I have read. Why say done, but gone and loan? Is there any reason none? To summarize, it seems to me sounds and letters disagree. तो भाई हिंदी में जैसे लेटर्स हैं वैसे ही साउंड्स भी हैं, लेकिन इंग्लिश में लेटर्स 26 हैं जबकि साउंड्स 44 हैं. और इसी कारण से क्या होता है कि लेटर कुछ है, और जैसे अगर हम देखें सी एच की आवाज, तो वो जो है ना कि एक बच्चा दुकान पे गया, उसने कहा अंकल अंकल मुझे केमिस्ट्री की किताब दे दीजिए, केमिस्ट्री की किताब. तो अंकल ने कहा बेटा सी एच जो है वो क होता है, तो इसलिए बोलो केमिस्ट्री की. तो वो जो अंकल थे, उनकी जो केमिस्ट शॉप थी उसका नाम था चोपड़ा केमिस्ट. तो उसने कहा कोपड़ा अंकल मुझे केमिस्ट्री की किताब दे दीजिए. तो सी एच च भी होता है, सी एच क भी होता है. और अगर हम बोले शिवेलरी, CHIVALRY, शिवेलरी, तो यहां पर सी एच जो है वो श भी होता है. So same letters they are giving different sounds. So that's why English is a language of confusion. And जैसे कि मैथमेटिक्स में एक बार जो एक ज्योमेट्रिशियन थे बहुत फेमस, यूक्लिड, तो यूक्लिड से जैसे एक बार प्रिंस ने पूछा कि इज देयर एनी इजी वे टू लर्न ज्योमेट्री. जो प्रिंस थे उन्होंने पूछा इज देयर एनी इजी वे टू लर्न ज्योमेट्री. तो यूक्लिड ने कहा नो माय डियर प्रिंस, देयर इज नो रॉयल road for geometry. It means everybody will have to put his sincerest efforts. You need to burn your midnight oil to leave no stone unturned if you want to learn English language. ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इसलिए बच्चे को ज्यादा से ज्यादा शब्दों का एक्सपोजर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा शब्दों का, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चा शब्द सुनेगा उसी से उसका उच्चारण क्लियर हो पाएगा. क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बार बार बच्चा दिखेगा कि अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, सेम लेटर्स का अलग अलग तरह का. जैसे मैंने कल बोला था DEBUT इज डेब्यू, RAPPORT इज नॉट रैपोर्ट, इट इज रैपो. और जबकि हम देखते हैं कि देयर आर वर्ड्स लाइक ऑफन, ऑनर, ऑनेस्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू गिव मैक्सिमम एक्सपोजर टू अवर स्टूडेंट्स. ओनली देन दे विल बी हैविंग ए वेरी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दे विल बी हैविंग अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साउंड पैटर्न ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. तो कल मैंने ये बात कही थी आपसे कि 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, कंटेंट बेस्ड एंड स्किल बेस्ड. English language is basically skill based, and to obtain any skill practice is needed. किसी भी जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है उसको प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है. अधिक से अधिक प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज BICS एंड CAL. BICS stands for Basic Interpersonal Communication Skills. तो जो हम कहते हैं कि 4-fold skills of language: listening, speaking, reading and writing. So another name of listening, speaking, reading and writing is BICS, Basic Interpersonal Communication Skills. This is called language development. But the very ambitious and the long term objective of language teaching is CAL, Cognitive, Advanced,
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज, ये एडवांस लेवल का ऑब्जेक्टिव है। वंस द चाइल्ड हैज अटेन्ड, जब बच्चे ने एक बार गेन कर लिया प्रोफिशिएंसी बेसिक लेवल की, कि वो लिसनिंग सीख गया, स्पीकिंग सीख गया, रीडिंग सीख गया, राइटिंग सीख गया, नाउ ही हैज स्टार्टेड यूजिंग दीज स्किल्स फॉर क्रिएटिव पर्पस। अब उन्हीं स्किल्स का यूज करके बच्चा जो है वो क्रिएटिवली यूज कर रहा है। देखिए, जब बीआईसीएस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी रीडिंग राइटिंग है, जब हम काल्क की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी रीडिंग राइटिंग है। लेकिन कैसे? पहला है लर्निंग टू रीड एंड लर्निंग टू राइट, जबकि दूसरा है रीडिंग टू लर्न, राइटिंग टू लर्न। पहला वाला अपने आप में क्या है, बेसिक लेवल। बच्चा जब हमारे विद्यालय में आ रहा है तो ही हैज बीन लर्निंग हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। लेकिन एक लेवल के बाद में जाकर अगर इस समय इस एज में हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो क्या हमारा मकसद भी वो उसी ढंग का है जैसा कि छोटे बच्चों का होता है, कि पढ़ना लिखना सीखना, या पढ़ने लिखने से कुछ नए आइडियाज ड्रॉ करना, कुछ मतलब नए आइडियाज को जनरेट करना कुछ एडवांस लेवल पे? तो यही जो है, जो राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, है ना, जो आर्टिस्ट हैं, तो व्हाट दे डू, दे यूज देयर लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टू एन एडवांस लेवल। वो एडवांस लेवल पर जाकर उनका यूज करते हैं, और उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, वो एक स्टोरी बना देते हैं, एक पीस ऑफ पोएम, पीस ऑफ पोएट्री, एक आर्टिकल, है ना, जो कुछ भी वो लोग क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएशन के लेवल की बात है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स, रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स मीन्स जिनके थ्रू हम लैंग्वेज को रिसीव कर रहे हैं, तो लिसनिंग के थ्रू हम लैंग्वेज को रिसीव कर रहे हैं, और साथ में रीडिंग के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को रिसीव कर रहे हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स क्या है, कि जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को अब हमने पहले गेन कर लिया, इनपुट हो गया, अब इसका आउटपुट, आउटपुट या तो स्पीकिंग के रूप में है, या फिर हमारा राइटिंग के रूप में है। तो रिसेप्टिव स्किल्स हो गए लिसनिंग एंड रीडिंग, एंड प्रोडक्टिव स्किल्स हो गए हमारे स्पीकिंग एंड राइटिंग। कल हमने ये भी थोड़ी सी बात करी थी, फिर से बात कर लेते हैं। रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का क्या रोल है? तो टीचिंग ऑफ ग्रामर इज नॉट एसेंशियल, एसेंशियल इज इट्स यूज। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो दीज डेज वी टॉक अबाउट, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय देयर वाज टू मच एम्फेसिस ऑन ग्रामर, ग्रामर की सेपरेट बुक हुआ करती थी। बट इन सीबीएसई दीज डेज दे डोंट प्रेफर सेपरेट बुक ऑफ ग्रामर। व्हाट दे से कि ग्रामर शुड बी टॉट इंट्यूटिवली, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। जब हम बच्चों के सामने कंप्लीट सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा हमने जब बोलते रहते हैं या बात करी, और ग्रामर तो बहुत बाद में हमने जाके सीखी, ठीक उसी ढंग से जब हम इंग्लिश बच्चों के सामने बोल रहे होते हैं तो दे हैव बीन लर्निंग द स्ट्रक्चर्स, दे हैव बीन लर्निंग द सिनेटैक्टिक पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न। जो सेंटेंस पैटर्न है यही तो ग्रामर है, कि कौन सा शब्द इस वाक्य में कहां पर आना चाहिए, यही अपने आप में ग्रामर है। तो ग्रामर, देयर इज नो नीड टू टीच ग्रामर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली students they learn, they grasp, they internalize grammar. But when we give too much importance to grammar, what happens? Again we start teaching about the language and not actually the language. तो लैंग्वेज सीखने के लिए जरूरी है कि बच्चा उन नियमों को ना सीखे, बल्कि नियमों को सीधे सीधे अप्लाई करना सीखे। जैसे हिंदी भाषा के नियमों को बगैर सीखे हमने हिंदी भाषा में उनका यूज करना शुरू किया। वी शुड टॉलरेट और ओवरलुक द एरर्स इन द बिगनिंग। शुरुआत में बच्चा गलती भी करे तो उसको हमें ओवरलुक करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। एज द चाइल्ड अटेन्स फ्लुएंसी द रोल ऑफ ग्रामर कम्स। बच्चे ने एक बार सीख लिया तो फिर ग्रामर का रोल आता है। द रोल ऑफ ग्रामर इज टू रिफाइन द लैंग्वेज। इफ वी प्रोवाइड देम द कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल सॉल्व नेचुरली। पहले इंपॉर्टेंट है कि बच्चा स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से सीख ले, तो उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स अपने से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि बच्चा को ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस आई नो दिस लैंग्वेज। आवर टेक्स्ट बुक्स आर ओनली टूल्स टू अचीव द एम। याद रखिएगा कि दे आर नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स, दे आर नॉट द एम,
वो सिर्फ टूल्स हैं, वो सिर्फ साधन है जिसके थ्रू बच्चा जो है भाषा को सीख सकता है। एंड 4 वेज 4 स्टेप्स जो है, एक्सपोजर है, मोटिवेशन है, रिपीटेशन है एंड प्रैक्टिस है। बातचीत खूब हो गई, चलिए थोड़ा सा रिडल्स आपके लिए। तो पहली रिडल आपके लिए है, इट वॉक्स इट वॉक्स ऑन 4 legs इन द मॉर्निंग, 2 legs एट नून एंड 3 legs इन द इवनिंग, व्हाट इज इट? हाँ, जोर से बोल दीजिए आंसर ताकि मेरे को भी सुनाई दे। नहीं सुनाई दिया मेरे को। Still they are solving. ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये हम सब लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स। जब बच्चा होता है तो इट वॉक्स ऑन 4 legs। जब यंग हो गए तो इसलिए नून को हमने क्या बोला, यूथ की निशानी है, तो वो अपने आप में 2 पैरों पर। और जब बुढ़ापा आ जाता है, इवनिंग, तो 3 legs, है ना, तो ह्यूमन बीइंग। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आई एम द बिगिनिंग ऑफ द एंड द एंड ऑफ टाइम एंड स्पेस, आई एम एसेंशियल टू क्रिएशन एंड आई सराउंड एवरी प्लेस, व्हाट एम आई? Time. टाइम? नहीं, टाइम नहीं है। Repeat it, sir. ये दिखाई भी दे रहा होगा सामने। No, no. Get the slide. ये आपको दिख नहीं रहा है, मतलब जो रीडल में दिखा रहा हूँ स्लाइड शो में नहीं आ रहा है क्या? It is not visible. I अच्छा, slide. Guess what? एक मिनट में दोबारा से डिस्प्ले करता हूँ सर, देखिएगा Now, जरा। now, now. Yes, yes. Now it is. Now it is visible. विजिबल है? ओके, सो आई एम द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ टाइम एंड स्पेस, आई एम एसेंशियल टू क्रिएशन एंड आई सराउंड एवरी प्लेस, व्हाट एम आई? Air. नहीं, और थोड़ा सा और जोर डालिए दिमाग पे, बहुत आसान सा आंसर है। हाँ, Sun. नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए मैं आंसर दे दूं। No, sir. जीरो तो नहीं, जीरो तो नहीं है। मैथमेटिक्स में कहाँ पहुंच गए? लैंग्वेज में रहना चाहिए था तो आंसर मिल जाता। बोलो, Please. अभी मैंने कहा था ना कि मैथमेटिक्स में कहाँ चले गए, लैंग्वेज में रहना चाहिए था। तो लैंग्वेज में अगर आप रहते तो आप सोच के देखिए, लेटर ई, लेटर ई, आई एम द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ टाइम। एंड लेटर स्टार्ट हो रहा है ई से, और टाइम एंड स्पेस एंड हो रहा है किस पर? ई पर। आई एम एसेंशियल टू क्रिएशन, तो क्रिएशन वर्ड तब तक बनेगा ही नहीं अगर उसमें ई नहीं आएगा तो। एंड आई सराउंड एवरी प्लेस, जरा ये जो शब्द है एवरी प्लेस, इसको देखो, एवरी प्लेस ये घिरा हुआ है किससे? ई से, क्योंकि एवरी प्लेस की स्टार्टिंग भी ई में है और एंड भी किसमें है? ई में। आप क्लियर हो रही है बात? ये आई सराउंड एवरी प्लेस, एवरी का ई एंड प्लेस का ई, तो ये जो वर्ड है ये घिरा हुआ है किससे? ई से, तो लेटर ई। ठीक है ना? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब बताइए, व्हाट इज इन सीजन्स
seconds, centuries, and minutes, but not in decades, years, or days. सीजन्स ओ एस 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 क्या नहीं भाई, अब इसी में देखना पड़ेगा। ये शब्द है, एस शब्द है, ये भी है। ओ लेटर ओ, लेटर ओ देखिए, वो शायद नहीं है, इसमें देखो। I'm waiting for your answer. सीजन एस है, ई है, ए है, एस है। They are unable to find it. लेटर एन देखिए, N. एन। N तो सीजन्स सीजन्स में भी एन है, सेकंड्स में भी एन है, सेंचुरीज में भी एन है, मिनट्स में भी एन है, लेकिन डिकेड्स में एन नहीं है, ईयर्स में एन नहीं है, और डेज में एन नहीं है। like सही है ना सर? yes. चलिए नेक्स्ट है, व्हाट स्टार्ट्स विद अ टी, एंड्स विद अ टी, एंड हैज टी इन इट। Tattoo. क्या? Or twice. नो, Tattoo. नो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। व्हाट स्टार्ट्स विद अ टी, एंड्स विद अ टी, एंड हैज टी इन इट। T T T स्पेलिंग? T E A. तो टी ई ए जो है वो, उसमें टी तो नहीं आ रहा है, तो एंड में तो टी ए नहीं आ रहा है। Test. टेस्ट। अच्छा, अगर हम बोले टी पॉट, इट स्टार्ट्स विद अ टी, एंड्स विद अ टी, और टी पॉट के अंदर क्या होती है? पीने वाली टी। ये लास्ट वाला जो टी है, इसको टी ई ए टी मान के चलिए। अक्षर T वाले T पे। व्हाट स्टार्ट्स विद अ टी, एंड्स विद अ टी, एंड हैज टी इन इट, टी पॉट। नेक्स्ट है, से माई नेम एंड आई डिसअपियर, व्हाट एम आई। अरे वाह, वेरी गुड सर, क्लैपिंग। सो द वर्ड इज साइलेंस। जैसे ही आपने बोला इस वर्ड को, साइलेंस खत्म हो गई। तो से माई नेम एंड आई डिसअपियर, वेरी गुड सर। इसी ढंग की कुछ रिडल्स हमारे पास में हो सकती हैं, और भी हैं, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। ठीक, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टंग ट्विस्टर्स, यूज ऑफ टंग ट्विस्टर्स। क्योंकि जैसे टंग ट्विस्टर्स का फायदा क्या होता है कि सेम साउंडिंग जो वर्ड्स हैं उनको बोलने में बच्चा कई बार दिक्कत हो रही होती है। जैसे हम हिंदी में भी बोलते थे ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो वैसा ही कुछ इंग्लिश में भी है। तो जैसे बोलिए सब लोग मिलकर पहले वाला। अच्छा, इसको मैं वो कर देता हूँ सर, स्लाइड शो में कर दीजिए सर इसको। स्लाइड शो में कर लेता हूँ इसको। हाँ, स्लाइड शो में कर दीजिए। सर अब दिख रहा है? नहीं, स्लाइड शो में नहीं हुआ ना, नहीं है। स्लाइड शो में नहीं हुआ? हुआ तो स्लाइड शो में ही किया मैंने। नहीं किया है। व्यू में जाकर स्लाइड शो कर दीजिए, नीचे एक आइकन बना होगा उसका। एक मिनट सर।
स्लाइड शो में जाके मैंने करंट स्लाइड पे ही किया था। शायद हो चलिए नहीं रहा। मैं वैसे ही जूम करता हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ करिए, शायद हो नहीं रहा। अभी कुछ जूम हुआ? हाँ थोड़ा हो गया, ठीक है। दिख रहा है? हाँ पढ़ने में आ रहा है? थोड़ा और कर दीजिए तो हो जाएगा। अच्छा सर, एक मिनट। अब? यस। पीटर पाइपर. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where is the pack of pickled peppers Peter Piper picked? बोलिए. नेक्स्ट वाला भी पढ़िए. How much would ये जो सेम साउंडिंग है इनके, ये बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाहिए इसको ज्यादा से ज्यादा. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. तो इस तरह के जो टंग ट्विस्टर्स हैं दीज आर वेरी वेरी यूजफुल टू इंप्रूव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक, ये एक एक्टिविटी है. इसमें वी आर सपोज टू डिस्क्राइब. इस तरीके से हम बच्चों के कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं कि यस, स्टूडेंट्स 1 और 2 और 3 और 4 स्टूडेंट्स दे मे बी आस्क्ड कि ओके वट एवर यू नोटिस इन दिस पिक्चर यू हैव टू स्पीक आउट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है इसमें? यस, बोलिए बोलिए, कुछ भी बोलिए जो मन में आए. हाँ, he is sleeping and he has a smile. Probably he is watching some dream. हाँ. So these kind of activities can be very useful for students. इस तरीके से. ठीक, नेक्स्ट देखिए. ये भी they have been playing football. तो इस तरीके से likewise we may display such kind of pictures before students, and they may be asked कि first of all they are supposed to write some sentences on the picture, and then they may be asked to share those sentences before the class. तो इस तरीके से भी हम स्पोकन की तरफ लेके जा सकते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच, फोकस ऑन लैंग्वेज एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट. रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन ऑल करिकुलर एरियाज एंड मस्ट बी द बेसिस ऑफ फॉर करिकुलम प्लानिंग. तो कोई भी सब्जेक्ट हम क्यों ना पढ़ें, अल्टीमेटली वी लर्न दैट सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. तो थ्रू लैंग्वेज वी आर लर्निंग सब्जेक्ट्स, and from all the subjects what we have been learning language. So basically all the subjects they are enriching our language. This is called across the curriculum approach या multidisciplinary approach. अभी जैसे मैं आपसे कह रहा था कि
लैंग्वेज के साथ में हमेशा रहा है माइट इज राइट. तो these days the modern trend is in the form of American English. So American English, it has become more pervasive, more dominant, more popular in comparison to the British one. And the effect of American English is even felt in England, where a large section of young population prefer to use American vocabulary. These findings were published in a book titled The Fall of the Empire, The Americanization of English. उसमें ये findings जो है निकल कर आई थी. अब आप देखिए ये जो वर्ड्स हैं, ये अमेरिकन वर्ड्स हैं और ये ब्रिटिश वर्ड्स हैं. पहले से हम लोग क्या बोलते रहते हैं? बिस्किट. आज उसके लिए क्या बोलते हैं? कुकीज. कुकी वर्ड यूज किया जाता है. सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए सोफोमोर. जो नल होता है टैप, उसके लिए फॉसेट. पुडिंग, सोफा, काउच, टिन, केन. जो लाइन लगती है क्यू लाइन, जो हम पेट्रोल भरवाते हैं ना गाड़ी में, तो वहां पर पेट्रोल के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड गैस. जग, पिचर. लिफ्ट के लिए एलिवेटर. रबर के लिए इरेजर, टॉर्च, फ्लैशलाइट. चिप्स के लिए फ्राइज. जैम के लिए जेली. सॉलिसिटर, लॉयर. पोस्ट, मेल. फुटबॉल, सॉकर. पोस्टल कोड, जिप कोड. स्पेलिंग का डिफरेंस देखिए जरा दोनों में. ब्रिटिश में स्पेलिंग्स क्या रहती हैं और अमेरिकन में. और आप एक बात ये भी देखिएगा कि जब मैंने ब्रिटिश में लिखा तो देखो उसको रेड लाइन आनी शुरू हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका. हम जब कहते हैं कि माइट इज राइट, तो इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका इज द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री. So that is why they have become more prominent, they have become more powerful. इसलिए उनकी इंग्लिश सब जगह चल रही है. और आप देखिए कि टेक्नोलॉजी भी एक्सेप्ट कर रही है, कंप्यूटर लैपटॉप भी एक्सेप्ट कर रहा है उन्हीं की इंग्लिश को. कलर की स्पेलिंग देखिए, फेवरेट, ऑनर, एनरोलमेंट, फुलफिल, स्किलफुल, कैटलॉग, डायलॉग, बैंक. ये सब डिफरेंसेस हैं. So we are almost up to the closer of the this presentation. So if any queries, मिश्रा सर, कोई भी अगर क्वेरीज हो, कोई भी जिज्ञासा अगर यहां से हो हमारे पार्टिसिपेंट्स की, तो जी सर. No, sir, they don't have any query. If they have query, I will ask you through WhatsApp. And Okay, or sir. call. So if there is no query, then most important slide I am going to display. Okay, sir. Please. This is the most important slide. Thank you, sir. Thank you. Thank you. They are, Thank you so much, sir. Thanks to all the participants. Thanks to Honorable Coordinator of the workshop, Dr. Mishra sir, and Hemubish sir, and all the team of Barcode Diet. Thanks to all of you for giving me an opportunity. This is really a very what we call very eventful day for me. A very wonderful experience for me. Thanks to all of you. thank you, sir. They all have a smile on their face. It proves that it proves that your presentation and lecture was very interesting and enjoyable for them. So I am very thankful and grateful to you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. And expect your favor in future also. Sir, obviously, always there with you. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Namaskar, sir. Have a nice day. Namaste. Welcome, sir. क्या चीज? इसको मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को और सुनिएगा.
हमारा यूट्यूब चैनल है डाइट बड़कोट, उसको आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और करवाइए भी अपने साथियों से। तो इसको शनिवार को मैं अपलोड कर दूँगा, या कल सुबह भी कोशिश करूँगा करने के, शनिवार को निश्चित कर दूँगा, कर लूँगा। तो वहाँ से आप लोग वीडियो ही डाउनलोड कर लीजिएगा, तो जो इच्छा हो वो करिए।